Well, sir, I guess we will start. It's already 6:05, and we'll keep on accepting students meanwhile. Sure, sir. So, good evening, Shagats and other students. Welcome to the interview and GD sessions. So, today we have two veterans from the education industry. One is Rohan Garg, sir, who's there with us, and we have Aksar also with us. So your first session was supposed to be the personal interview session, but we have made a slight change. So your first session would be by Rohan sir on technical interviews or technical interview skills. So just to give you a brief idea about Rohan sir, he has been in this industry for more than a decade. uh, Personally, he's an alumnus of IIM Kolkata. He's an engineer and in electronics and telecommunication field. He's a faculty who teaches mostly for GATE students, for CAT students, for law students. He's done a lot of campus recruitment sessions. So it would be an honor to listen from these veterans to make sure all the pointers, all the tips, all the one-liners which they give you, you make a note of it. Feel free to ask questions and make the most of this particular session. So welcome aboard, Rohan sir, and all over to you. Thank you, Meeraj sir. And a warm good evening to all the participants out here, all the engineers out here. Sir has already given a very warm welcome to me and Aksar. Aksar will also be along with me at the fact. So, uh, so basically, this session is meant for interviews and technical interviews plus HR interviews. How you need to face, all of you are engineers, I hope, and as sir has said, मैं भी एक अभागा इंजीनियर हूँ आप ही की तरह and पिछले 12 सालों से I've been teaching guidance in different parts of the country. I've been teaching sessions in cities like Pune, Nagpur, Aurangabad, Hyderabad, Delhi, Ahmedabad, Guwahati, Bhopal, a lot of places I've been taking and roaming around. And there are 2-3 things which I look forward for. हम placements की बात करते हैं या फिर हम interviews की बात करते हैं तो engineers के दो तीन सवाल बहुत important होते हैं. ठीक है, तो आज हम उन दोनों तीनों सवालों को address करने की कोशिश करेंगे. Between me and Aksar, we'll try to have a common session at the end where we will be giving you some doubts. आपके जो भी सवाल होंगे, I will love to answer those questions. आज take much of your time. I will typically talk for almost what we say is approximately 40 minutes, 45 minutes, not more than that. And I will try my level best to give you all the insights which you need to take care while you're going for an interview. Whether it is a technical interview, whether it is a normal interview, interview remains interview. ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा. बहुत इत्मीनान से सुनिएगा. मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से कि चैट बॉक्स में अभी कुछ मत लिखिएगा. जो भी आपके सवाल हैं एक नोटबुक रख लीजिए. गो टू अ प्लेस जहां पर आप अकेले हों ताकि तभी आप इस इंटरव्यू सेशन का फायदा ले पाएंगे. Career Launcher Pune has organized this event for you guys, and I represent the Ice Gate part of it where we train students for right. So हम लोग आपके लिए इतना पेन ले रहे हैं, आपका कॉलेज आपके लिए इतना पेन ले रहा है. सो मेक श्योर दैट आप इसको पूरे दिल से शिद्दत से अपीयर करेंगे. और जब भी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो चैट बॉक्स में लिख के आंसर दीजिएगा बिकॉज आई कैन सी योर चैट. आई हैव म्यूटेड ऑल द पार्टिसिपेंट्स अदरवाइज सो दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस एंड नो डिस्ट्रैक्शन व्हाइल वी आर स्पीकिंग. ठीक है, 35 मिनट मुझे दीजिएगा. मैं शिद्दत से आपको सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा. व्हाटएवर एक्सपीरियंस आई हैव गॉट फॉर सो मेनी इयर्स, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव इट टू यू. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट with a small exercise guys. ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ. वेयर I know it's very difficult to do this exercise in an online environment, but still we will try to do it because उसके मायने बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको बहुत काम में आएगा. मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, so let's quickly talk about that particular thing. हम उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो एक्सरसाइज है. ठीक है, सभी लोग रेडी. और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि बिल्कुल शिद्दत से, इत्मीनान से, बिल्कुल ऑनेस्टली ये एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे. दो एक्सरसाइज कराऊंगा, उसके बाद मेरा एक पीपीटी है उसके ऊपर चलेंगे अपन. तो दो एक्सरसाइज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट. ठीक है,
तो बहुत ईमानदारी से करिएगा, बहुत ऑनेस्टली करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उस एक्सरसाइज को यहाँ पर कमिट कर पाए, ठीक है। सो रेडी, कैन आई हैव एन एंथुसियास्टिक यस फ्रॉम एवरीवन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कैन आई हैव यस 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 यस, कैन आई हैव यस 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 यस। यस एवरीवन, यार थोड़ा सा एंथुसियाज्म दिखा दो तो मजा आ जाएगा मुझको सुनने में, पढ़ने में। यस, ओके नीतू, ओके हर्ष, ओके ओके प्रणाली, ओके सृष्टि, सुयश, प्राची, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन दैट यू आर रेडी। कुमार, ओके ओके प्रसाद, ओके नमन, ओके others. I want an enthusiastic yes from everybody. I want people to be enthusiastic in this session. मजा आना चाहिए यार आप लोगों को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मनीष, ऋतुजा, ओके थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, ठीक है। चलिए ग्रेट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Most of the people have confirmed me in the chat box that they are able to listen to me properly. आपको मेरी आवाज आ रही है and you are all able to talk to me, ठीक है। So let's start or begin the exercise, ठीक है। तो एक्सरसाइज में आपको बहुत ईमानदारी से करना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बहुत ऑनेस्टली इस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो पहले एक्सरसाइज करते हैं। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, जिसने नहीं की है प्लीज आंखें बंद कर लीजिए। और आंख बंद करके एप्पल के बारे में मत सोचना, एप्पल के बारे में मत सोचना, मत सोचो एप्पल के बारे में, बिल्कुल मत सोचो एप्पल के बारे में। एप्पल रेड कलर का होता है, बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। एप्पल फ्रिज में रखा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, मत सोचो, मत सोचो, मत सोचो, एप्पल फ्रिज में रखा है, मत सोचो। नाउ ओपन योर आईज, एक्टिविटी इज ओवर, ओपन योर आईज। क्या फील किया, चैट बॉक्स में लिखेंगे। What happened? What happened in the chat box? Can somebody write it down? What happened when I said Apple मत सोचो? क्या हो रहा था? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। हाँ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। I think now it is for everyone. So yeah, please write now write down. Earlier it was going to only me. Now you can write down in the chat box. Yes. हाँ सर, एप्पल ही दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, ठीक है। देखो क्या हो रहा था, प्लीज अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट हियर, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था, दैट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ पिक्चर इमेजिंग, द पावर ऑफ पिक्चर इमेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू एनवायरनमेंट। आप एक इंटरव्यू एनवायरनमेंट में जाना चाहते हो, पिक्चर इमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हो क्या रहा था, उस समझने की कोशिश करो। जब मैंने कहा एप्पल की इमेज होती है, आप लोगों के दिमाग में बन गई, आपने देख लिया। मैंने कहा फ्रिज, आपके दिमाग में बन गया, इमेज बन गया। मैंने कहा रेड कलर का एप्पल, आपके दिमाग में बन गया इमेज। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ मत दो सोचो, मत देखो, तो मत की तो कोई इमेज नहीं होती ना, होती है मत की इमेज। मत की क्या इमेज होती है, जैसे मैं बोलता हूँ मत देखो, तो देखो की इमेज, आंखें दिखेंगी देखो, बट मत देखो की कोई इमेज नहीं, मत की कोई इमेज नहीं है, इसलिए वो हमारे दिमाग में नहीं आता। इज दिस पॉइंट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Are you guys with me? Can I have a yes? Say yes बोलते रहना, so that I understand that you are here. What I'm trying to tell you here is, guys, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इंटरव्यू में जब जा रहे हो तो अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए पिक्चर इमेजिंग बना लेंगे आप, यू नो। आपके दिमाग में वो पिक्चर्स होने चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हो। कई बार वो चीजें कम्युनिकेट नहीं हो पाती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इमेजिन दैट पर्टिकुलर। अगर वो इमेजिन नहीं कर पाओगे, देन इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जितने भी थॉट्स आपके पास हैं वो सबको आप पिक्चर के फॉर्म में लेके जाएंगे। रट्टा नहीं मारना है आपको, ठीक है, बट पिक्चर के फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ आज का एक सेशन, एक छोटा सा पीपीटी आपको दिखाऊंगा। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू सी द पीपीटी आउट हियर, ठीक है। मैं आपको एक पीपीटी दिखाऊंगा पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर, कैसे उसको फेस करते हैं, कैसे उसको लेके जाते हैं। और फिर लास्ट में आपके जो भी सवाल होंगे, गिव मी 30-35 मिनट, आई ट्राई टू रैप अप दिस सेशन हियर इन 30-35 मिनट्स। आपके जो भी सेशन होंगे, आई विल लव टू आंसर दैट सेशंस, दैट क्वेश्चंस वन ऑन वन। आप लास्ट में मेरे से जितने भी सवाल है पूछिएगा, अभी बीच में चैट बॉक्स में कुछ मत लिखिएगा, सो दैट यू नो जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक सीधा सीधा कम्युनिकेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इंजीनियर्स के साथ क्या होती है पता है, हम लोग ना इंटरव्यू को एक बहुत जीने मरने का सवाल बनाते हैं ना। हमारे दिमाग में एक इंटरव्यू की गंदी इमेज बनी होती है, ठीक है। क्या इमेज बनी होती है इंटरव्यू की? गंदी इमेज। इंटरव्यू होगा,
हाँ नौकरी मिलेगा उससे, है ना, या प्लेसमेंट मिलेगा। आप एमबीए के लिए जाना चाहते हो, कैट के लिए जाना चाहते हो, गेट के लिए जाना चाहते हो, तो अल्टीमेटली इंटरव्यू तो फेस करना पड़ेगा। एवरीवेयर यू गो यू विल हैव टू फेस इंटरव्यू, यस और नो। लाइफ में इवन प्रमोशन के लिए इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू की गंदी इमेज हमारे दिमाग में क्या होती है, इंटरव्यू होगा, पता नहीं कौन क्या कराएगा, है ना, हमारी तो काला कोट वाला एक अंकल आएगा, हमारी बैंड बजाएगा। सो नाउ दिस प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये जो एक सोच है ना, वो हमें मार देती है। एक समझने की कोशिश करो, इंटरव्यू शब्द को अगर आप ध्यान से देखो, सो कैन आई ब्रेक दिस इनटू टू वर्ड्स, इंटर एंड व्यूज। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इंटर एंड व्यूज। व्यूज मींस व्हाट, विचार, आपके विचार है कि नहीं, ठीक है, आपके बेसिकली क्या है, विचार। व्यूज आपके ओपिनियन क्या है, और इंटर मतलब आपके अंदर के। सो इंटरव्यू शब्द को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आपके अंदर के विचार जानना चाहते हैं। मुझे एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी अंकल इंटरव्यू देते हैं ना, शाहरुख खान इंटरव्यू देते हैं ना, देते हैं ना, क्या डरते हैं क्या? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली इंटरव्यू देते हैं ना, क्या डरते हैं क्या? नहीं। घबराते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने विचार, अब तुम उनके विचार से मानते हो या नहीं मानते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दैट इज देयर व्यूज। प्लीज अंडरस्टैंड, वो उनके अंदर के व्यूज हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मेक श्योर दैट इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, नॉट अ रिजेक्शन प्रोसेस। प्लीज अंडरस्टैंड, वो एक अच्छा कैंडिडेट सिलेक्ट करना चाहते हैं बॉस। मैं आपको एनालॉजी देता हूँ, समझने की कोशिश करो, राइट। देखो, उनको भी तो अच्छा कैंडिडेट चाहिए ना। हमें ऐसा लगता है कि हमें उस नौकरी की जरूरत है, बट उस इंटरव्यूअर को भी एक अच्छे कैंडिडेट की जरूरत है। वो जो एचआर के लोग होते हैं, उन्हें भी सैलरी किस बात की मिलती है, किस बात की सैलरी मिलती है, आपको अच्छा सिलेक्ट करने की तो नौकरी मिलती है। उनका भी रिव्यूज होता है, उनके भी इंटरनल असेसमेंट होते हैं, और उस असेसमेंट में यही देखा जाता है कि आप कितने सिलेक्ट हुए, आप आपने कितने अच्छे बच्चे लेके आए। What they are looking forward for is, there are two type of things which they will look at, two skills rather I would say. One, how logical an engineer is, that is very important. Second, how versatile an engineer is. Versatile समझते हो, अलग अलग कितना वेराइटी में वो घूम सकता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स भी अच्छा लगता है, कितना वर्सेटाइल है और कितना लॉजिकल है। बस यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कहीं पे भी बनावटी ना बने, जो है वो उसको दिखाएं। यू नो, आप अगर गोल्ड की चाबी है तो गोल्ड की चाबी रहिए, आप सिल्वर की चाबी है रही है। देखिए, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन आपके हाथ में नहीं है ना। आप उस ताली चाबी में सेट होते हैं। द स्क्रीन इज नॉट ऑन द फुल स्क्रीन मोड। ओके, आई लेट मी जस्ट डू इट अगेन। लेट मी जस्ट ट्राई टू, ओके, आई होप इट इज फाइन नाउ। Yeah, so I think that is the best I can go forward for Meeraj sir. Yes sir, yes sir, it's good now. Okay, thank you. So yeah, so what I was trying to tell you is guys कि समझने की कोशिश करिएगा, जो जो चाबी आप ताले में फिट कर रहे हैं, जिस चाबी को वो ढूंढ रहे हैं, वो आपको नहीं पता है। आप अपना बेस्ट शॉट दे सकते हो, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन गिव, ठीक है। यू कैन शो योर इंटरव्यूज, आपके अंदरूनी विचार आप बता सकते हो। क्या सर आपने कभी इंटरव्यू दिया है? हाँ दिया है, मैं रोज चाय पीने जाता हूँ या किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वहाँ इंटरव्यू देता हूँ ना। अरे सर क्या बात करें, वहां का इंटरव्यू होता है। आप उस वेटर से पूछते हो क्या है खाने में, वो आपसे बोलता है ये है खाने में, आप बोलते हो कैन आई से दैट इज आल्सो एन इंटरव्यू। आप किन्हीं दो लोगों एक दूसरे को समझने की बात कर रहे हैं, दैट इज एन इंटरव्यू, दैट्स इट, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट। समझने की कोशिश कीजिए। तो इंटरव्यू को देखो, एक और एनालॉजी देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल से और समझाता हूँ, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पापा के फ्रेंड है, ठीक है, जस्ट इमेजिन योर पापास फ्रेंड हु हैज कम फ्रॉम लेट्स से यूएस आफ्टर 15 इयर्स। 10-15 साल के बाद, पता नहीं अमेरिका में कहीं रहते थे वो, आपके पापा के कॉलेज के फ्रेंड हैं, और 10-15 साल के बाद इंडिया आए हैं। जब आपके घर वो डिनर पे आते हैं, जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन। आपको देख के जब आपका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, व्हाट इज देयर फर्स्ट रिएक्शन? ओह, इतना सा था, हाँ इतना बड़ा हो गया बेटा, हाँ, दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन दैट अंकल इज गोइंग टू गिव यू, राइट। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू, क्या कर रहे हो आजकल, हाँ व्हाट आर यू डूइंग। तो आपका जवाब होगा अंकल वो मैं सियागढ़ कॉलेज में ना, शर्माते हुए, सियागढ़ कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पुणे में हूँ आजकल, ये वो पुणे, वेरी गुड, वंडरफुल, ये वो। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, क्या करने वाले हो जीवन में? एंड यू विल से मैंने तो विदेश जाने का सोचा है, मैंने ये कैट करने का सोचा है, मैंने जॉब लेने का सोचा है, व्हाटएवर कम्स योर माइंड, एंड हाउ ही इज गोइंग टू आस्क यू, अरे आजकल तो इसका जमाना है, ये क्यों नहीं करते हो, वो देखो, होता है ना। बस यही इंटरेक्शन इंटरव्यू में होगा। समझ लीजिए, वो अंकल काला कोट पहन के आपके इंटरव्यू टेबल के सामने आ चुके हैं। Exactly the same question which this uncle is going to ask you will be the questions of an interviewer. Please understand, mark my words. He is not sitting with a set of questions. Please understand, guys.
he is going to ask you questions from whatever you wish to say. आप जो बोल रहे हो उसी में से नया नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, बिकॉज वो आपको आपके व्यूज जानना चाहता है। वो किसी भी टॉपिक पे बात करके कर सकता है, वो आपसे क्रिकेट के बारे में बात कर सकता है, वो आपसे पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकता है, आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर सकता है, एनीथिंग। ठीक है, हाँ, आप कितने साउंड है वो तो उसके मार्क्स भी आपको बता देंगे। ठीक है, बट आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कैसे पोर्ट्रे करते हो, आपका इंटरेस्ट कितना है आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, क्या बचपन से वो इंटरेस्ट था या बाद में डेवलप हुआ है, वो सारी बातें आपसे 15-20 मिनट 25 मिनट का इंटरव्यू होगा। चाहे आप ओएनजीसी में जाओ, जैसे मेरे पास गेट के बहुत सारे बच्चे आते हैं। ठीक है, मैं गेट की तैयारी कराता हूँ बच्चों को ऑनलाइन पे भी। तो गेट के लिए जब हम प्रिपरेशन कराते हैं तो आपको पता होगा कि गेट का जो एग्जाम है वो सारी पीएसयूज के लिए काम में आता है। मोस्ट ऑफ द पीएसयूज इंडिया में 250 से ज्यादा पीएसयूज हैं, जिसमें से अराउंड 43 पीएसयूज लाइक ओएनजीसी नाम सुना होगा आपने, डीआरडीओ, ओएनजीसी डीआरडीओ का नाम सुना होगा आपके सेटअप है। ठीक है, ओएनजीसी, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जितनी भी आपके सामने कंपनीज में लिख रहा हूँ, ऐसी 43 पीएसयूज गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट देती है। और इन सब में इंटरव्यूज होते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो आपसे टेक्निकल के अलावा आपसे ये भी टेस्ट करेंगे कि आप कितने अच्छे लॉजिक रखते हैं, आप कितने अच्छे प्रेजेंटेबल हैं, और कितना अच्छा आप अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं। ये 3 चीजें आपसे टेस्ट करने वाला है। आपकी प्रेजेंटेबिलिटी स्किल कितनी अच्छी है, आपकी लॉजिकल स्किल्स कितनी अच्छी है, और आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। ठीक है, दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू टेस्ट यू ऑन। ठीक है, तो अंकल वाली स्टोरी क्लियर होती है, सबको समझ में आता है, यहां तक क्लियर है? बढ़ते आगे। ठीक है, चलिए। नाउ इफ आई लुक एट द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एन इंटरव्यू, व्हाट इज एन इंटरव्यू बॉस? सो टेक्निकली अगर आप देखने जाओगे, सो इट्स एन एफिशिएंट प्रोसेस टू हेल्प द कंपनी चूज द बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन। राइट, अगर आप कॉलेज के लिए जा रहे हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हो, तो वही इंस्टीट्यूशन हो जाता है, लेकिन एक एफिशिएंट प्रोसेस है जो कि चूज करता है बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। ठीक है, सर इंटरव्यू होता ही क्यों है? Why interview? Why are you doing interview? आपने मेरा मार्क्स देख लिया, आपने मेरा एंट्रेंस एग्जाम देख लिया, या फिर कोई टेस्ट ले लिया, फिर भी आप इंटरव्यू करते हो। तो सबसे पहले चीज जो मैंने बताया था, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड नॉट रिजेक्शन। इंटरव्यूअर आपके एडवांटेजेस को देख रहा है, समझने की कोशिश करिए। देखिए, उसको भी एक अच्छे कैंडिडेट की जरूरत है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप टेंशन में होंगे, घबराहट में होंगे, तो क्या अपना बेस्ट शॉट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो आपसे उस इंटरव्यूअर से एक अच्छा कैंडिडेट छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? सो आप समझने की कोशिश कीजिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। वो आपको हमेशा कंफर्ट जोन में डालेंगे, वो हमेशा आपको बोलेंगे कि बेटा अगर आप घबरा रहे हो पानी पी लो, आपसे पोलाइट आपको बोलेंगे 1 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दे वांट द बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू जॉइन देयर कंपनी। सो दे 99% चांसेस हैं कि आपके लेवल पे जब आप फ्रेशर हैं तो एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा। 1% चांसेस है स्ट्रेस इंटरव्यू होने का। स्ट्रेस इंटरव्यू मतलब वो एकदम रोडीज टाइप इंटरव्यू, वो आपकी बैंड बजाने की कोशिश करें, बट दैट इज ओनली 1% चांस। इट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल इंटरव्यू, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, सो समझने की कोशिश करिए, इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जबकि आप जीडी की बात करते हो, ग्रुप डिस्कशन की बात करते हो, सो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। वहां पर आपकी गलतियां देखी जाती है। एंट्रेंस एग्जाम सारा प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, नॉट सिलेक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, वहां पर आपको गलतियों से बचना है। जब मैं बच्चों को प्रिपेयर करता हूँ एग्जाम्स के लिए, तो मैं बच्चों को समझाता हूँ कि ऑप्शंस कैसे वो बनाता है ताकि आप गलती कर दो। आपने फॉर्मूले में 2 नहीं लिखा, वो ऑप्शन में होगा और आप गलती कर दोगे। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, नॉट सिलेक्शन। ठीक है, सेकंड, व्हाई इंटरव्यू इज कंडक्टेड इज टू चेक योर इंडिविजुअलिटी। यार देखो, इंजीनियर आदमी जो होता है ना, ग्रुप में, झुंड में बहुत अच्छा काम कर सकता है। हम लोग एकदम एनिमल हंटिंग करते हैं झुंड में। आप 5 लड़कों का ग्रुप है या 5 गर्ल्स का ग्रुप है, सर आप दुनिया हमारे कदमों के नीचे, हम ही हैं दुनिया को चलाने वाले। ठीक है, कुछ भी कर देंगे। लेकिन मैं अकेला आ गया ना, जब बैंड बज जाती है बस। सिंगल आदमी, ओ अब तो मेरे पास कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, अब मैं अकेला। तो इंडिविजुअलिटी, इसलिए इंटरव्यू ग्रुप इंटरव्यूज नहीं होते, नॉर्मली दे आर इंडिविजुअल इंटरव्यूज। सो आप एज अ पर्सन कितने अच्छे लीडर है, कितना अच्छा थॉट प्रोसेस रखते हैं। ग्रुप में आप बादशाह हो, मुझे भी पता है, उसको भी पता है। इंडिविजुअलिटी टेस्ट हो रही है। नंबर 3, नोज द पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड्स वेरियस सिचुएशन। आप अलग अलग सिचुएशंस को कैसे मैनेज करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे प्रेजेंस ऑफ माइंड के सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कांच का ग्लास अगर आपने गिरा दिया तो इसके कितने टुकड़े होंगे? तो यू कैन बी वेरी क्रिएटिव, इट्स अ वेरी एब्सर्ड क्वेश्चन, बट इट इज टेकिंग योर एटीट्यूड। आपको ऐसे नहीं बोला अरे सर ये तो कैसा सवाल हुआ। यार, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड वेरी वेरी ऑन द स्पॉट ऑन दैट थिंग। यू शुड से सर मोर देन 1, or you may say let's drop the glass sir and let's count. So you can be creative at times, but you have to be very positive.
आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाना है। जब तक आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके नहीं जाओगे तो अलग अलग सिचुएशंस को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सेकेंडली लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं एक इंटरव्यू का एग्जांपल देता हूं। देयर वाज एन इंटरव्यू गोइंग ऑन फॉर अ कंपनी कॉल्ड एज गूगल। नाम सुना होगा ना, है ना? सर क्या बात करोगे, नाम सुना, हम तो चाहते हैं गूगल में नौकरी करना। लेट्स से गूगल की अगर मैं बात करता हूं तो गूगल का एक इंटरव्यू चल रहा था इन हैदराबाद, ठीक है। यू नो द सिटी ऑफ हैदराबाद, गूगल हैज एन ऑफिस देयर इन हैदराबाद, ठीक है। सो गूगल का ऑफिस था और दैट ऑफिस वाज एज प्रोबेबली ऑन द 22nd फ्लोर। 20-22 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर टॉप फ्लोर पे इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। और इंटरव्यू के बीच में एक इंटरव्यूअर ने कहा कि भाई ठीक है, तुमको हम सिलेक्ट कर लेंगे अगर तुम उस खिड़की के पार चले जाओगे, खिड़की के पार कूद जाओगे। तो इंटरव्यू ही बोला कि अरे साहब, खिड़की के बाहर कूद जाऊंगा तो जान है तो बचूंगा, तो इंटरव्यू आगे बढ़ूंगा ना। तो वो उसने मना कर दिया। सेकंड बंदे आया, उससे थोड़ी बातचीत की, उससे पूछा, बोला सेम ऑफर, आप खिड़की के बाहर कूद जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है। मना कर दिया। पांचवा, छठा, सातवां, एक बंदा आया, उससे पूछा कि आप खिड़की के बाहर चले जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो वो खड़ा हुआ अपनी सीट से। ही वेंट नियर टू द विंडो, ठीक है। और जब वो विंडो के पास गया तो उसने देखा कि विंडो के उस तरफ, है ना, विंडो के उस तरफ देयर इज अ पेवमेंट। पेवमेंट समझते हो, थोड़ा सा मतलब ऐसा छोटा सा छत जैसा है, टेरेस जैसा है। ही वेंट देयर एंड केम बैक। नाउ व्हाट इज द लर्निंग आउट ऑफ दिस? इंटरव्यूअर पागल तो नहीं था। उसने आपको ऑप्शन दिया, उसने आपको एक प्रॉब्लम बताया और आपने दूर से उस प्रॉब्लम को देख के क्या बोला? सर मुझसे तो नहीं होगा। दिस गाय डेफिनेटली इज नॉट गोना जंप, वो नहीं कूदने वाला था, बट हैज द गट्स टू गो टू द प्रॉब्लम, एटलीस्ट evaluate the problem, and probably he got the solution also. Are you getting it what I'm trying to say? It is a person's attitude which is important. आप कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे बहुत सारे ऐसी सिचुएशन दे सकता है जहां पे आपने सोचा भी नहीं है, आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हो, बिकॉज इंटरव्यूअर्स आर ट्रेन्ड टू गिव यू सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। और आपको उस समय पे पॉजिटिव माइंड रखना है, कहीं पे भी नेगेटिव माइंडसेट रख के आप कभी भी नहीं जीत पाओगे, ठीक है। किसी भी प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले एक पीपीटी होता है। व्हाट इज अ पीपीटी? इट्स नॉट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हियर, इट इज कॉल्ड एज प्री प्लेसमेंट टॉक। अगर कोई प्लेसमेंट देने कंपनी आई है आपके कॉलेज में तो पहले एक प्री प्लेसमेंट टॉक होगा, followed by a test, could be a technical test or an aptitude test or both of them, right? And then a personal call, could be a GD, that is group discussion and interview. और जो बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं उनका फाइनली रिजल्ट आता है। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ इट वर्क्स इन अ प्लेसमेंट सेल, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल, सर मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा? सर बाकी सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा? आई एम नॉट अ रजनीकांत। यार देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, इस स्लाइड पे मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना, वो सब के सब मिथ हैं। मिथ समझते हो? गलत धारणाएं, ठीक है, मिथ हैं वो, ठीक है। क्या है मिथ? क्या उन्हें रजनीकांत चाहिए? नहीं चाहिए। अगर उन्हें रजनीकांत चाहिए, रजनीकांत से मतलब जिस बंदे को सब कुछ आता हो, अगर उस बंदे को सब कुछ आता हो वाला चाहिए तो वो आपके कॉलेज में आपको एलिजिबल ही नहीं करता। समझिए बात। वो आपको जानता है ऑन अ ब्रॉडर लेवल, द क्वालिटी विच आई हैव ही नोज, एंड ही इज नॉट लुकिंग एट रजनीकांत, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, नहीं तो आपको बुलाता ही नहीं, आपको एलिजिबल नहीं करता। वो कहता ना कि जिस बच्चे के हर सब्जेक्ट में 99% मार्क्स होंगे वही आना, नहीं बोलता ना ऐसा। 60% मार्क्स इज द क्राइटेरिया, टिपिकली 60% मार्क्स इज द क्राइटेरिया, दैट मींस ही इज नॉट लुकिंग फॉर अ रजनीकांत, प्लीज अंडरस्टैंड। वो सिंपल लोगों को देख रहा है, ठीक है, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, लाइक टेक्निकली जब आप जा रहे हो, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए आप जा रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई भी एक सब्जेक्ट आउट ऑफ दिस 4 यू शुड बी गुड एट। लेट्स से थर्मोडायनेमिक्स और मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन्स और साउंड, ठीक है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट, उसको पढ़ के जाइए। चाहे आप ये नहीं बोल सकते सर ये तो मैंने पहले पढ़ा था, आपका फेवरेट होगा। इसके अलावा भी कोई फेवरेट है, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज सिविल इंजीनियर के लिए मैं बात करता हूँ तो जियोटेक पकड़ सकते हो, ठीक है, सॉइल एंड फाउंडेशन, ठीक है। देन आरसीसी स्टील आप पकड़ सकते हो, सर्वेइंग ले सकते हो, ठीक है। एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स ले सकते हो, सर्वेइंग के साथ आप ट्रांसपोर्टेशन या हाईवे इंजीनियरिंग को पकड़ सकते हो। एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स यू कैन पिक अप। इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए, डीबीएमएस पक्का देख लीजिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम देख लीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स देख लीजिए। ये 4 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक या दो पे आपको अच्छे से पकड़ बनानी है, इनमें से कोई भी एक या दो पे, सारे नहीं, सारे नहीं, सारे कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक या दो पे स्ट्रॉन्ग बना लो। सर मैं ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूँ, इलेक्ट्रिकल वाला हूँ, तो भाई एनालॉग सर्किट्स इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, जहाँ पे आप बोर्डे प्लॉट,
या फिर आप कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं, माइक्यूस क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैं लिख रहा हूँ ये गेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास जो गेट के बच्चे प्रिपेयर करते हैं, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं गेट की प्रिपरेशन, बिल्कुल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप जीवन में कुछ भी करो, गेट की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी टेक्निकल नॉलेज साउंड हो जाती है। ठीक है, बहुत साउंड हो जाती है। आप जीआरई करना चाहते हो, आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो, गेट के, मेरे सारे गेट के बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, गेट में सिलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन प्लेसमेंट में पक्का सिलेक्ट हो जाते हैं, ये गारंटेड हो जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया। केमिकल इंजीनियरिंग से हो आप तो प्रोसेस कंट्रोल, केमिकल टेक्नोलॉजीज, यू कैन टू ओवर हीट एंड मास ट्रांसफर एंड थर्मल। ये 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट आपको उठाना है। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल, केमिकल टेक्नोलॉजीज, हीट एंड मास ट्रांसफर, थर्मल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये कोई भी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपको पक्का इनमें से उठाना अगर आप केमिकल इंजीनियर हो। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने आपको कहा वो रजनीकांत को नहीं ढूंढ रहे, आपको 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए, बाकी नहीं आते इट इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आपने वो माय काउ का स्टोरी सुना है? एनीबॉडी हैज हर्ड ऑफ माय काउ स्टोरी? चैट बॉक्स में यस नो लिखो जरा, यस नो लिखो चैट बॉक्स में, इफ यू हैव हर्ड ऑफ माय काउ स्टोरी। जल्दी 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 से जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, यस नो यस नो यस नो। नो नो नो, अच्छा नहीं सुना है, चलो मैं सुना देता हूँ। मैं छोटा सा स्टोरी सुना देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। तो स्टोरी क्या कहता है? स्टोरी ये कहता है कि एक गांव था, उस गांव में ना एक सरकारी स्कूल में एक एस्से लिखने को आता था। एस्से समझते हो ना, निबंध लिखने को आता है ना। और एस्से आता था माय काउ पे। एस्से का टॉपिक क्या था? माय काउ। तो बच्चे रट्टा मार के आते, हर साल आता था, हर साल, एवरी ईयर इट कम। तो बच्चे रट्टा मार के आते थे, है ना, गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है ना, गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय बहुत अच्छी होती है, गाय सीधी सादी होती है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, एक बार एक प्रिंसिपल वहां पे चेंज हो गया। प्रिंसिपल साहब आए, प्रिंसिपल साहब ने बोला भाई पेपर मैं बनाऊंगा, है ना, भाई पेपर मैं बनाऊंगा, गाड़ी भाई चलाएगा, यू नो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और क्या बोला प्रिंसिपल साहब ने? प्रिंसिपल साहब ने बोला इस बार एस्से का टॉपिक माय काउ नहीं हो। जब बच्चों ने पेपर खोला तो इस बार टॉपिक था माय हाउस। मर गए बच्चे, तो माय काउ याद करके आए थे, तो सब लोग चालू हो गए, है ना, काउ हैज 4 legs, गड़बड़ हो गया। एक बच्चा स्मार्ट था, उसने क्या किया, उसने लिखा आई हैव अ हाउस, outside that house there is a cow. Cow has 4 legs, cow gives milk, cow is good, cow is that, cow। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई उसको आता तो माय काउ ही है, कैसे अपने सवाल को उसने माय काउ की तरफ, अपनी स्ट्रेंथ की तरफ मोड़ दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? सभी से यस मिल जाएगा इस बात के लिए। अगर माय काउ का स्टोरी क्लियर है सबको, चेहरे पे स्माइल आया है तो एक यस दे दीजिए। ठीक है, सभी लोग से यस मिल जाएगा मेरे को। आपको आपके इंटरव्यू में यही करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे बॉइल डाउन करना है। ठीक है, राइट, आपको सुना होगा आपने, इंटरव्यू में 2 तरह के सवाल होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, है ना। 2 तरह के सवाल होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, टेल मी अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस गोइंग ऑन in many of the countries, या we'll talk about the covid situation in the world, so I think it's an open end question, बहुत कुछ बात कर सकते हो आप कोविड सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? सो सर माय नेम इज रोहन एंड आई क्लोज दिस। सो हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सर मैं इंटरव्यू दे रहा हूं ना मेरे हिसाब से, मतलब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड भी मैं ही डिसाइड करूंगा। सर कैसे डिसाइड करूंगा? समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, टेल मी अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, और मे बी टेल मी अबाउट द कोविड सिचुएशन अक्रॉस द ग्लोब, राइट। इट सीम्स टू बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, बट अगर मुझे उस पर बात नहीं करनी है तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, सर बीइंग एन इंजीनियर I am not following the COVID situation more, but I am more interested in the data science world which is going on today. Do you understand how I have modified, I have changed my things from open-ended to close-ended? Is this point clear what I am trying to say? मैंने कैसे ओपन एंडेड को क्लोज एंडेड में या क्लोज एंडेड को ओपन एंडेड में कन्वर्ट करने की कोशिश की, समझ में आ रहा है सभी को? आपको माय काउ का स्टोरी याद है? माय काउ का स्टोरी, बस माय काउ की स्टोरी पे डेविएट करना है, आपकी स्ट्रेंथ एरियाज पे लेके जाइए। अब ये नहीं कि आपने अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला था उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, उसके बारे में आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सेइंग आई डोंट नो इन एन इंटरव्यू इज नथिंग बैड, प्लीज अंडरस्टैंड, कोई गलत नहीं है। अगर आपको आता, मेरे को एक बच्चा है, सैमसंग नाम की कंपनी सुना है ना? ठीक है, सैमसंग, ठीक है, सुना है आपने, राइट। आईआईटी रुड़की में पढ़ रहा है, मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, अभी उसका प्लेसमेंट हुआ
होता है, एमटेक कर रहा था वहां से, okay, I think I got disconnected. Is it back? Somebody can confirm. Yes, so we can see you. Yeah. Okay. So just sorry. So yeah. So here I'm saying, please understand. मैं बच्चे की बात बता रहा था, IIT रुड़की वाले स्टूडेंट की 10 क्वेश्चंस पूछे उससे सैमसंग के इंटरव्यू में, ओनली 3 सही बताए उसने। 7 क्वेश्चंस में ही सेड आई डोंट नो। It was true. Please understand. Saying an I don't know is not a negative at all. You can always say that I don't know. कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस से प्रेम से बोल दीजिए। और जहां आप डेविएट करना चाहते हैं, जैसे माइकाओ लेके आना चाहते हैं, तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन व्हिच आई आस्क यू, व्हाट इज योर नेम? सर, क्लोज एंडेड क्वेश्चन सर, हाउ कैन आई मेक इट ओपन एंडेड? यू कैन। सर, माय नेम इज रोहन and I am named after a legendary Sunil Gavaskar's son, Rohan Gavaskar. Cricket is something which I am very, very close to. I watch all the cricket matches, and in my family there is a cricket war which is going on at times when there is a cricket match. Do you think that I have made a close-ended question and open-ended question? Yes or no? I am giving, देखो, इंटरव्यूअर कोई टॉपिक लेके नहीं आता भाई, उसके पास कोई टॉपिक की लिस्ट नहीं है, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, नहीं, वो किसी भी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता है, दैट्स इट। सो आपको ये समझना है कि आपको उसको टॉपिक दे देना है। इट इज लाइक, यू नो, वो इंटरव्यू ले, उससे अच्छा मैं इंटरव्यू दूंगा मेरे हिसाब से। मेरे को जो जो टॉपिक अच्छे लगते हैं, मैं उन टॉपिक पे उससे बात करूंगा। Getting my point? And I should always have that mind. Picture imaging जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरे दिमाग में 2-4 पिक्चर क्लिक होनी चाहिए, मुझे इस जगह पे आपको साथ बात करवानी है सर, मुझे ये मेरे स्ट्रेंथ एरियाज है। I'm not good at academics, I'll try to deviate him to non-academic thing. I'm good at management things, you have to take it him to the management thing. I'm good at handwriting, no problem, I try to portray that somewhere or the other. वो मेरा माइका होना चाहिए। मुझे जो आता है, मेरी ड्राइंग अच्छी है, मेरा म्यूजिक अच्छा है, मेरी स्पोर्ट्स अच्छा है, मेरी टीम वर्क ग्रुप स्किल्स अच्छी है, मेरी कोई ना कोई स्किल तो अच्छी हो। और आपको अपनी स्किल जाननी है ना, कई बार ये होता है कि सर मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है ना। यू नो, कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं मेरे को कि सर हमने सुना है कि बहुत सारे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक ही सर्टिफिकेट है, वही मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ, जीवन में मैंने कुछ किया ही नहीं है सर, मैं क्या करूँ? देखो, मैं बताता हूँ आपको, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा या छोटा भाई बहन होगा, ठीक है, उसके पास चले जाओ और उसको बोलो, भाई बहन जो भी है, ठीक है, उसको बोलो क्या मेरे अंदर कुछ अच्छी बात है क्या? एंड कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन? वो क्या रिएक्शन होगा उसका, पता है? तू तो दुनिया का सबसे बड़ा गधा है बे। हाँ, तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, तू ऐसा, तू वैसा, तू ये आम तेम सब पूरा पूरा कहानी बोलेगा, ठीक है। बोलने देना, कभी ना कभी उसको खाली हो जाएगा, है ना, उसको चुपचाप सुनते रहना, लास्ट बोलना, हाँ भैया ये तो बिल्कुल शाश्वत सत्य बोला तुमने, एक दो अच्छी बात है मेरे बारे में। And I'm telling you, if he or she is your well-wisher and he or she knows you well, he or she will give you 1 or 2 points. बस वही पकड़ लेना, वही आपके यूनिक पॉइंट्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ यूएसपी, सुना है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो मम्मी को जाके मत पूछना, मम्मी के लिए तो आप हमेशा दुलारे ही रहोगे यार, मम्मी के पास जाके यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे। कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, ठीक है, जिसने आपको जाना है अंदर तक, या कोई भाई बहन होगा, वही बता पाएगा, है ना। एक या दो ऐसे पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल, sir, I'm very good at maths and I'm also good at managing people. Now this is a skill which very few people will have, yaar. Everybody will not have this USP, right? For example, I'm good at coding and I'm also good at managing events. Wonderful, right? So you have to understand this thing. I know Sanskrit, and along with that I love cooking. Wonderful. Very few people will have this. और आपके अंदर वो कोई ना कोई ऐसा कॉम्बो जरूर होगा। सोच के देखो, इवैल्यूएट करके देखो, आई एम गारंटिंग यू विल डेफिनेटली हैव दिस, ठीक है। सो अगर कुछ सर्टिफिकेट्स कोर्सेज किए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किए तो जबरदस्ती टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। बी व्हाट यू आर, आप अपने आप को वहां पे पोर्ट्रे कीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम, सर इंग्लिश बोलने में तो अपनी वाट लग जाती है सर इसका क्या करें, ठीक है। देखो यार, इतनी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूज टिपिकली विल बी इन इंग्लिश, ठीक है। सो इतनी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी आती है, लेकिन राइट मोमेंट पे राइट वर्ड्स निकल के नहीं आते। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, यस लिखो चैट बॉक्स में,
राइट समय पे राइट वर्ड निकल के नहीं आते सर। इंग्लिश तो मुझे आती है बट राइट टाइम पे, देखो यार मैं भी इंजीनियर हूं, तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट वी गो थ्रू, ठीक है, मैं भी तो तुम्हारे फेस से गुजर चुका हूँ, और इतने सारे हजारों लाखों इंजीनियर को हर साल पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, उसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करोगे सर? आपको कुछ नहीं करना है, आपके फ्रेंड को पकड़ो और उसको बोलो तू इंटरव्यू है और मैं इंटरव्यू हुई हूँ, दिस इज मी, चल भाई मेरा इंटरव्यू ले, चल मेरा इंटरव्यू चालू कर, ठीक है। वो इंटरव्यू में क्या पूछेगा आपको पता है, सारे सवाल आपको पता है। इंट्रोड्यूस कर अपने आप को, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, 5 years डाउन द लाइन कहां देखते हो अपने आप को, व्हाट विल हैपन इफ आई रिजेक्ट यू, व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू, दीज आर टिपिकल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस देम राइट। और मैंने बोला वो फोटोजेनिक इमेज बना लो, इंट्रोडक्शन में मैं ये 3 बातें बोलूंगा, उसमें ये प्रैक्टिस करो, इसको वाइवा मत समझ लेना यार कि यार कुछ तो कर ही दूंगा, ऐसा नहीं करना। बी प्रिपेयर्ड, प्रैक्टिस, और फिर थोड़ी देर के बाद रिवर्स कर दो, तुम इंटरव्यूअर बन जाओ, उसका इंटरव्यू ले लो। सवाल तो वही है यार, सवाल तो आपको सबको पता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस, और इंजीनियर से बेहतर प्रेजेंटेबिलिटी कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक ही गलती करते हैं हम, लास्ट मोमेंट पे जाते हैं। हमारी गंदी आदत ये है ना, वो एग्जाम से एक रात पहले ही हमारे अंदर रजनीकांत की आत्मा आती है, वो नहीं करना, करके जाना है, ठीक है। और बेसिक अंग्रेजी, मैं ये नहीं बोल रहा आप शेक्सपियर जैसे अंग्रेजी यूज करो, नो प्रॉब्लम, आप बेसिक अंग्रेजी, बेसिक इंग्लिश यूज करेंगे कि अपने विचारों को सामने वाले तक व्यक्त कर सको, उतनी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। यू शुड बी एटलीस्ट हैविंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। जब आप अपनी जो भी आप बात कहना चाहते हो उसको अंग्रेजी थोड़ा सा धीरे बोलो, फास्ट बोलने की कोशिश मत करो, और प्रैक्टिस करके जाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिथ विच आई एम सेइंग यू इज, सर टेक्निकल तो कुछ आता ही नहीं है, इसमें तो हमारी बैंड बच जाती है, बाकी सब तो ठीक है। मैंने अभी आपको बताया 4 सब्जेक्ट मैंने हर ब्रांच के बताए हैं, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके अलावा कुछ पूछ लिया माइकाओ कर दो। माइकाओ समझते हो अभी आप, ठीक है, वो नहीं आता, सर इफ यू अलाउ मी कैन आई गिव यू कैन आई गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डोमेन, आई हैव नो आइडिया अपॉन दिस पर्टिकुलर डोमेन, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन मूव ऑन, आप उसको चेंज कर सकते हो। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन नॉलेज ओनली पर्टिकुलर दैट नॉलेज, वो वही सब्जेक्ट को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको सुनने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, से आई डोंट नो, इवन इफ यू आर गेसिंग समथिंग, आप तुक्का मार रहे हो तो उसको बोल दो, सर ऑनेस्टली आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर बट आई थिंक द लॉजिक गेट विच शुड बी यूज्ड इन दिस इज अ नैंड गेट, ठीक है। आप उसको बोल दो, इफ यू अलाउ मी टू गेस, आप मुझे तुक्का मारने देंगे क्या, तो मैं तुक्का मारता हूँ, ठीक है। I'm confused between two formulas. I'm not able to get whether it is lambda square or lambda, but it is directly proportional to lambda square. Sigma, whatever the values, whatever the formula, जितना आप recall कर सकते हो, उतना आप बताएंगे उसको. And be very genuine. Don't bluff. Don't confident bluff. आप कितने भी सुंदर इंजीनियर होंगे, है ना, कई मैंने इंजीनियर देखे, स्मार्ट, सर फोड़ देंगे अपन तो, ठीक है, आप आने तो दो, सामने वाले को कहाँ पता लगने वाला है कि मैं योगा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, भाई वो सब पता लगा लेगा, उसको सैलरी उस बात की मिलती है। आपके बॉडी लैंग्वेज साइन, राइट, दे विल रीड। आप स्क्रैचिंग करते हो ना, ऐसे करते हो, आंसर देने में ये करते हो, ये दीज आर साइंस दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। आपकी एक बॉडी लैंग्वेज वो जज कर रहा है या कर रही है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट्स वेरी, उनको पैसे मिलते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, उनका काम है साल भर में रिक्रूटमेंट करना। सो प्लीज डोंट एवर ट्राई टू ब्लफ, जो हो वो दिखाओ। टेक्निकल आता है, जितना आता है बताइए, नहीं आता है मत बताइए, वेरी सिंपल सम रूल है, ठीक है। सक्सेस मंत्र आई एम टेलिंग यू, कैसा है सक्सेस मंत्र, उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले नॉलेज, देखिए नॉलेज इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास नॉलेज, आई नॉर्मली से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राहुल गांधी स्पीकिंग एंड नरेंद्र मोदी स्पीकिंग। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी स्पीकिंग की बात कर रहा हूं। क्या फर्क है? नॉलेज। अगर नॉलेज होगा तो आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे, नॉलेज ही नहीं है तो नहीं बोल पाओगे, बिल्कुल सिंपल। आज मैं आपके सामने इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं बिकॉज मुझे इस टॉपिक की नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो मैं घबराऊंगा, हकलाऊंगा, बहुत सारे प्रॉब्लम, आपको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे के पास ज्ञान है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिहेवियरल एंड पर्सनैलिटी स्किल। ड्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे पैसा खर्च लेना। ब्लेजर पहन के जाना अगर विंटर्स में जा रहे हो कोई इंटरव्यू करने, ठीक है, टाई वाई पहन लेना। आपके सॉक्स का कलर और बॉटम का कलर, आपकी पैंट का कलर लगभग कैमोफ्लेज होना चाहिए। होता क्या है, हम व्हाइट कलर का सॉक्स पहनते हैं और ब्लैक कलर का पैंट, तो जब आप बैठते हो तो थोड़ा सा पैंट ऊंचा हो जाता है ना, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रास्ट दिखता है। डोंट डू दैट, ट्राई टू मेक अ ब्लैक सॉक्स इफ यू आर वेयरिंग अ ब्लैक बॉटम, ठीक है। आपके शूज का कलर और बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए। डोंट वेयर अ हैंकी पैंकी बेल्ट देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज, इवन फॉर द गर्ल्स आल्सो, ठीक है। आप बेली पहनते हैं या जो भी आप शूज पहनते हैं और आपका बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए। आप देखिए ब्राउन और ब्लैक ही आता है नॉर्मली,
ठीक है, नॉर्मली आई एम यूजिंग द वर्ड नॉर्मली। फॉर गर्ल्स वेयर वेस्टर्न फॉर्मल्स, ठीक है, लुक स्मार्ट। यार देखो, मरा मरा इंसान किसी को नहीं चाहिए। बाल वाल अच्छे से बना के जाइए, ट्रिम करके जाइए, बात करके जाइए, एकदम स्मार्ट दिखने चाहिए। पीपल शुड, द फर्स्ट इंप्रेशन हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर बिहेवियरल स्किल्स, पर्सनालिटी स्किल्स हैव टू बी, वॉक करके जाओ एकदम स्मार्टली, ऐसे मरा मरा जाओगे तो कोई सिलेक्शन नहीं देने वाला भाई। सो इट हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट ओनली द इंग्लिश कम्युनिकेशन, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कभी भी आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, हमेशा याद रखो हैंड मूवमेंट शोल्डर विड्थ के बाहर नहीं जाने चाहिए, कभी भी ऐसे 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 हाथ नहीं जाना चाहिए। आपके हैंड मूवमेंट्स हो सकते हैं बट टू दिस लेवल। यू कैन आस्क फॉर अ पेन एंड अ पेपर इफ यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, यू कैन आस्क फॉर इट, नो प्रॉब्लम एट। अगर आप घबरा गए हो, कुछ भी चीज है तो एक गिलास पानी पी लो, नो प्रॉब्लम। कीप योरसेल्फ काम एंड कंपोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बी एथिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कहीं पे भी ना एथिक्स को मत छोड़ देना। गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको फंसाएगा, बहुत फंसाएगा। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या बोलेगा कि आप है ना कंपनी में सिलेक्ट हो गए, ठीक है, और आप एक डील के लिए जा रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस क्लाइंट के पास जा रहे हो, बस साइन करवाना है, फाइनल साइन करवाना है, और वो 15,000 करोड़ रुपए की डील है, 15,000 करोड़ रुपए की डील है, ठीक है। आप जा रहे हो एक कार के अंदर, और बाय द वे आपने या आपके ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया, और आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोला यार 100 रुपए का रिश्वत देना पड़ेगा या 500 रुपए का ब्राइब देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा, शाम तक यहीं बैठना पड़ेगा, कोतवाली जाना पड़ेगा। आप ब्राइब दे दोगे? प्रैक्टिकली यू विल से यस, 15,000 करोड़ की डील है सर, क्या मजाक करो, 500 रुपए देके 100 रुपए देके निकल जाऊंगा। लेकिन इन एन इंटरव्यू से नो, 15,000 करोड़ की चली जाती है, चली जाए, मेरी नौकरी चली जाती है, चली जाए, मैं एथिक्स नहीं छोड़ूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, इट लुक लाइक एन इम्प्रैक्टिकल आंसर बट यू नीड टू बी एथिक। एथिक्स में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आपको सिंपल कहीं पे भी वो फंसा, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, अभी आपने काली दुनिया देखी नहीं है ना, नहीं देखी ना, राइट। तो बस आप एथिक्स को बिल्कुल पकड़ के चलिए। मैं बिलीव मी, यू विल गेट सिलेक्टेड, यू विल गेट गुड पॉइंट्स इफ यू आर ऑन एथिक्स। भले वो प्रैक्टिकली से थोड़ा सा डिफरेंट होता होगा, बट बी एथिकल एनी सेंस, किसी भी टाइप का। आपको बोलेगा आप 4 साल से एक क्लास में बैठे हो, आपका भाई है छोटा, 10th क्लास में फेल होता जा रहा है, आपके जो टीचर है, क्लास टीचर है, उनकी इच्छा है कि भाई इस साल वो पास हो जाए, तो आपको बोला है कि जा उसकी जगह तो एग्जाम दे के आ जा, और सब अलाउड है ना, टीचर खुद। विल यू डू? नो, नेवर। उस समय में मैं हरिश्चंद्र बनना चाहिए। एथिक्स इज द utmost important thing which you should take care of, ठीक है। हैव कॉन्फिडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी बताया। कॉन्फिडेंस रखना, स्मार्ट होना, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज एसेंशियल, ठीक है। आपसे पूछा कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो, हाउ मेनी स्टेप्स हैव यू टर्न्ड अप, अब आपको टेंशन हो रहा है और सीढ़ियां कहां देख रहा था मैं, ठीक है। आपको स्पॉन्टेनियस आंसर देना, सर 12। ही माइट आस्क यू कि सर वहां तो 10 ही है, तो बोला कोई बात नहीं। आपने बोला कितनी चढ़ी, मैंने एक सीढ़ी 2 बार चढ़ ली थी, या वो बोलता 15, तो बोला 2 छलांग मार दी थी। इट इज अप टू यू, हाउ डू यू टेक इट। सर आपके पीछे वाली दीवार का कलर क्या है, तो यार जो सामने वाली दीवार का, अभी आजकल तो चारों दीवारें भी अलग होती हैं, बट जो सामने वाली दीवार का कलर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इंपॉर्टेंट है वो समझिए। आप कैसे चीजों को हैंडल करते हैं वो इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं मेरी बात को। ड्रेसिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, ट्राई टू हैव अ प्लेन शर्ट फॉर मेल एंड फीमेल, आई एम बोथ सेइंग। सलवार कमीज इज ओके फॉर फीमेल्स, साड़ीज ट्राई टू अवॉइड, ठीक है। वेस्टर्न फॉर्मल रखिए आप, ठीक है। लुक स्मार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैव अ स्माइलिंग फेस, ट्राई टू बी कूल एंड काम। हमेशा याद रखो, इंटरव्यू से पहले एक गिलास पानी पी के जाओ। आपको पता है पानी का जो पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को ठीक रखता है। अभी मैं आपके साथ सेशन करने आया, 1 गिलास पानी पिया है मैंने, सो दैट आई डोंट हेजिटेट इन स्पीकिंग, मेरा गला नहीं सूख जाए, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम ना हो जाए। सो यू नीड टू बी कूल एंड काम। जितना रिलैक्स रहोगे उतना बेस्ट शॉट दे पाओगे, जितना टेंशन में रहोगे अपना बेस्ट शॉट नहीं दे सकते हो, ठीक है। मोबाइल फोन शुड बी स्विच्ड ऑफ, दिस इज अ ब्लंडर विच स्टूडेंट डू, ठीक है। और मेरा सजेशन है बाहर रख के आ जाओ यार, उस आधे घंटे में करोड़ों का नुकसान नहीं हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। होता क्या है ना, मुश्किल क्या होती है कि हम साइलेंट करते हैं सर, लेकिन वो जालिम पता नहीं कैसे ऑन हो जाता है, जेब में पड़ा पड़ा, पता नहीं कैसे अंदर वो बच जाता है, वो है ना, तो ही मेरा प्यार है, बस वो दिक्कत वहां है, ठीक है। तो प्लीज उस मोबाइल फोन को, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ ये गलती करते हैं, ठीक है। सो डोंट डू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड बी व्हाट यू आर, डोंट ब्लफ। ऐसा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो आप हैं उसको पोर्ट्रे करिए। आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर देम, दे विल सिलेक्ट, ठीक है। Traditional questions quickly I will take up, and then I will introduce Aksar if you have anything we both can help you on. So introduce yourself is the first question. Typically कैसी भी टेक्निकल इंटरव्यू में जाओगे, नॉन टेक्निकल इंटरव्यू में जाओगे, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या बताओगे। अब बताता हूँ उसके बारे में, अपने पैशंस के बारे में बात करो, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी USPs, मैंने बताया आपको यूनिक पॉइंट के बारे में, और ट्राई टू डू दैट माइकाओ, आप कहाँ ले जाना चाहते हो अपने इंटरव्यू को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गुड एट एकेडमिक्स, ठीक है, मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं हूँ,
और मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, so you should deviate it to that way. Like for example, I'll give you an example. Let's say I'm an electronics engineer from Siagat Institute of Technology and I'm sitting for an interview, ठीक है, मेरे से पूछा please introduce yourself. So I'm introducing myself. I've given you a background. I'm not good at academics and I'm good at sports and I'm good at cricket, let's say, okay. So what I'm trying to do, listen to this. Hello sir, my name is Rohan. I'm a pre-final year student of Siagat Institute of Technology from Electronics and Telecommunication branch. Well, my hobbies lies in playing cricket and watching cricket. I'm a big fan of Sachin Tendulkar. My father, who is a proactive businessman, is also a cricket fan. Whenever he comes back home from his office, he teaches me how cricket and business are correlated, how leadership and teamwork is an important aspect of business. My mother, who is a housewife, also participates in our discussion. I have watched all the cricket matches of Sachin Tendulkar. The best inning which I like about him was the Sharjah match against Pakistan in 1996. And I've read his book and I like his simplicity and humbleness which Mr. Sachin Tendulkar have. And I will stop. Do you think the next question can be anything apart from cricket? Obviously, the question, I've given him a topic. I've given him my hobbies. I've given him my strengths. I've given him my family background. I have not talked to him about academics at all. मैंने अपने academics के बारे में बात ही नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा academic बहुत अच्छा नहीं है. मेरी बात समझ रहे हो? सर वो तो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आया है ना, वो तो चाहता है कि मैं टेक्निकल साउंड हूं. भाई अगर वो आपको एलिजिबल नहीं मानता तो वो आपको बोल देता कि जिस बच्चे के कॉलेज में इतने मार्क्स हैं उसने आपको इंटरव्यू में बुलाया है ना, दैट मीन्स आप एलिजिबल हैं और आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप टेक्निकली इनएलिजिबल होते तो आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाता. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस? ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इज अ हाईजैकिंग क्वेश्चन. आप हाईजैक कर लीजिए अपने इंटरव्यू को उस समय पे और ले जाइए अपने डायरेक्शन में बात करने के लिए. ठीक है, ही माइट आस्क यू क्रिकेट एंड ही माइट आस्क यू फिजिक्स रिलेटेड टू क्रिकेट एंड ही माइट आस्क यू कि आजकल जो ट्रैकर आता है वो कौन से एंगल पे जाऊंगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम एंगल देगा. तो हाँ, आपको बोलना है 45 डिग्री पे मैक्सिमम. ये इतना सब थोड़ा बहुत फिजिक्स आना चाहिए, राइट? ही माइट आस्क यू एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट you need to do that my cow very effectively. ठीक है, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस could be where do you see 5 years from now. गंदा सा जवाब देते हैं इसका यार, है ना. where do you see 5 years from now, that depends upon the scale of the company. किस कंपनी के लिए. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, उसकी वेबसाइट जरूर पढ़ के जाइए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी वेबसाइट्स को आप बहुत डिटेल में पढ़ें, 1-2 घंटा डिवोट करें. कौन सीईओ है, क्या काम कर रहे हैं, व्हाट आर द न्यू प्रोजेक्ट्स दे हैव ब्रॉट इन, क्या मर्जर्स किए हैं, कितने करोड़ की कंपनी है, एवरीथिंग रीड इट डिटेल में, नोट्स बनाएंगे. ठीक है, where do you see 5 years from now, the answer should not be, मैंने बच्चों को देखा, I will become the CEO of the company. अब वो HR वाला कह रहा है मैं 12 साल से हूँ, मैं HR एग्जीक्यूटिव बना हूँ और तू 5 साल में CEO बन जाएगा भाई. So please understand, be very practical. What is the hierarchy of that company? Read it, right? Go to an alumni, go on LinkedIn, make network. LinkedIn पे आपके सीनियर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनसे नेटवर्क बनाइए, उस कंपनी के लोगों से कनेक्ट कीजिए. सोशल मीडिया का पॉजिटिव इंपैक्ट भी ले सकते हैं आप. ठीक है, so you come out with those particular practical approaches. Sir, in a 5 years period, a couple of years I will invest on understanding the ethics and the company's profile. So probably I've left with 3 more years and I would typically become a team leader leading a team of few individuals in the next 5 years. Wonderful answer you can give, a very diplomatic answer you can give in that case. ठीक है, right? What will you do if you are not selected? तो ये नहीं बोलना कि कल दूसरी कंपनी आएगी उसमें बैठ जाऊंगा. You can always say, sir, honestly speaking, I don't think you are going to reject me. But still, if you are going to reject me, I will go back home, introspect myself, and probably will try to improvise and come back again. ठीक है, तो पहली बात तो मैं पॉजिटिव हूँ कि आप मुझे सिलेक्ट करोगे. दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अगर चलो फिर भी आपने नहीं किया तो मैं जिद्दी नहीं हूँ. ठीक है, मैं इंट्रोस्पेक्ट करूंगा, आत्मचिंतन करूंगा, अपने बारे में सोचूंगा. अगर मुझे लगेगा कि हाँ कुछ इंप्रोवाइज करना चाहिए तो मैं इंप्रोवाइज करूंगा. एंड आई हैव द एटीट्यूड टू कम बैक अगेन. मेरे पास फेलियर को सहने का एटीट्यूड भी है. These days, the questions of simple questions like MBA interviews, if you go, CAT interviews, if you go, they are considered to be the second most toughest interviews after your UPSC. ठीक है, यूपीएससी के इंटरव्यूज के बाद थोड़ा सा टफ एग्जाम है तो वो कैट के ऊपर आ जाता है और वहां पे सवाल पूछा जाता है, हैव यू सीन एनी फेलियर्स इन लाइफ and how did you overcome that failure? This is a very typical question these days which have started coming in the forms as well as in the interviews. So
एट योर लेवल आपको लगता है फेलियर मतलब करोड़ों का नुकसान हो गया। यार फेलियर का मतलब सिंपल सी बात होती है, मैं एक स्टेप यहां से यहां रखना चाहता था, वो नहीं रख पाया, दैट इज माय फेलियर। मैं क्लास 10th में 90% मार्क्स लाना चाहता था, मेरे 87 मार्क्स रह गए, दैट इज अ फेलियर, छोटे लेवल का फेलियर है। तो ऐसा कुछ फेलियर आपको बताना हो, समझ रहे हैं मेरी बात को। एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस, दैट इज वेरी एसेंशियल। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। हमारी दिक्कत क्या होती है, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, लेकिन वो जालिम अंकल तो पढ़ते हैं ना। वो जालिम अंकल कौन, जो इंटरव्यू लेने आए हैं, वो तो रोज पढ़ता है यार। वो सवाल कहाँ से पूछेगा, वो सवाल वहीं से पूछेगा जहां से वो पढ़ के आया है। He might ask you, right? He might ask you कि what is the new variant which has come in COVID? अब आपको नहीं पता तो मर जाओगे। आपको किम जोंग उन कौन है वो पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मर्स के 3 लॉज हैं वो क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जो न्यूज़पेपर में आ रही, करंट अफेयर्स। इसलिए न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ना है जब आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं। उस दिन का अखबार तो बिल्कुल पढ़ के आएंगे, एटलीस्ट हेडलाइंस, और उसके 2-3 दिन पहले का भी पढ़ के आइए, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, व्हाट इज ब्रेक्सिट। बेसिक जनरल अवेयरनेस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एनी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंटरव्यू। क्लियर है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या रखोगे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। पैशन, ड्रीम्स, एस्पिरेशन, स्ट्रेंथ, यूनिक फीचर्स, आपके अंदर ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है। What is there for me that I should select you and not anybody else? So unique feature को सोचिए, अपने फ्रेंड के पास जाइए, बेस्ट फ्रेंड्स के पास जाइए, and then they will be able to give you the best of the unique features. ठीक है सर, that's it from my end. Any questions except this? Why Katappa killed Bahubali? ये तो आपको सबको पता ही है by the way. But any questions? And before that, taking up any questions, a quick feedback would help me to gauge whether this 40-45 minute session was a worth session for you. सभी लोगों से एक छोटा सा फीडबैक एक्सपेक्ट करूंगा, आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, and then we will take up any questions. Quickly guys, in the chat box, if you can give me the feedback, how was the session? Was it good, bad, ugly? One liner, one word would be enough for me to understand how was this session, and did you enjoy this session or not? Quickly. Okay, thank you Neetu, thank you Kumar, Diksha, Shreyas, Pratham, okay, Manvendra, Rituja, okay, thank you, amazing. Shivam says, Rituja says excellent. Vaibhav says worth the time. Pranali says thank you sir, great. Madhuri, thank you. Atharva, Mahesh, Bhushan, thank you guys for appreciating, amazing. Thank you. Even I enjoyed the session, and now I open the house for questions if you have any, or I will introduce Aksar now, if he can come on board and take his part of the presentation, and then No, I think we will take any questions. Rohan, I also enjoyed absolutely everything. Thank you sir. And so I think guys, we are open to questions now. I think me and sir is already there. You can post questions related to interviews. So sir, just to give you an introduction, sir has been into this education industry for last 21 years. He's the CEO of the CAT product of Career Launcher across India. He travels a lot, and I'm a big fan of him. Honestly speaking, he hails from the southern part of the country, but he has seen from Kashmir to Kanyakumari most of the cities, and he interacted with so many students. He has been an interviewer as well as an interviewee at a lot of places. So I think he has wonderful experience to share with you. So please post your questions, whatever you have related to interview. I think both of us will love to answer and help you as much as possible. Yes, guys, open to you for questions now. Thanks, Amruta, Atharva, Dhyaneshwar, Omkar. Yeah, my cow story was wonderful. Yashaj, thank you. Yeah, any other questions between me and Aksar? Anybody? Because we don't have much things to tell you now, because it's more of a practical thing, guys. Interview cannot be taught, it has to be experienced. And I've told you, अपने friends के साथ practice करिए. आपको सवाल पता है, सवाल वही 5, 6, 7 होने वाले हैं. Practice कीजिए, English बोलने का practice कीजिए, कैसे अपने thoughts को collect करोगे वो practice कीजिए, ठीक है? Yeah, so there's one question, I think, sir, you can take it up. The question is, sir, if we have weakness, how to be confident with during the interview? So Shreyas wants to ask this. No, you don't have to be confident about your interview. You just have to be naturally true about yourself. In fact, like Rohan has said very correctly, just understand one thing, friends, and for every one of you to say exactly the same thing. You don't have to be a perfect human being. Nobody is perfect, frankly speaking. And if you're thinking that you don't have a weakness, or if you talk about your weakness, the interviewer will not select you,
I think you're completely mistaken. That's not true at all. In fact, अगर आप बताओगे कि आपका weakness क्या है, और अगर आप सच में बता सकते हो, you know what that interviewer will think? That he knows this guy. I mean, he is confident that boss, मैं अपने weakness के बारे में बताने के लिए confident tha, kind of things. And if that weakness is true, and please understand, I think like Rohan sir has correctly said, the interviewer can understand who you are in that 15 minutes. It's very important to understand that. That is exactly what an interviewer is trained to. He is trained to understand who you are. And आप अगर आपके weakness बता सके सही में, that guy will be impressed. And that is when you will get through. That is the most important thing, guys. So don't worry about it. आप short tempered हो सकते हो, आप impatient हो सकते हो, आप lazy हो सकते हो, procrastinator हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो. हाँ, ये मत बोलना कि आप fickle minded हो, इतना मत बताना, because then we'll say, यार ये fickle minded है, आज तो हाँ बोलेगा, कल ना बोलेगा, kind of things. Maybe some things you might have to not say, but most of the weaknesses that we have, the very normal weaknesses that all human beings have, all students have, and all, I think, employees will also have, guys. Don't worry about that at all. Shreyas, especially you. I'll add one more thing to what sir said. आप लोगों को बहुत सारे YouTube वीडियोस है ना, इंजीनियर्स की गंदी आदत होती है, YouTube वीडियो देखोगे, बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलेंगे और आपको बोलेंगे जब भी वीकनेस का सवाल आए ना, तो ऐसी वीकनेस बोलने का जो आपकी एक्चुअली स्ट्रेंथ है ना. जैसे फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट एक्सेप्ट फेलियर्स. यार एक चीज समझ लो, बनाना मत, कुछ भी बनावटी मत करना, ठीक है. एक्चुअली यार वो आप सोचो, क्या वो इंटरव्यूअर ने वो वीडियो नहीं देखी है क्या? आपके जैसे हजारों बच्चों को वो हर साल इंटरव्यू करता है और आप जैसे घिसे पिटे जवाब उसको हर साल मिलते हैं. आपको 1 मिनट में पकड़ लेगा वो. सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एज सर हैव सेड, जो वीकनेस है हर इंसान में होती है, जेन्युइनली बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है. चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. In fact, Rohan, just to add things, by saying like the weaknesses, I work so hard that I don't take care of my health, is actually bullshitting yourself. Correct. अगर सच में वैसा है, that's not a weakness, that's a strength. अगर सच में हो तो मैं तो गारंटी ले लूंगा, because you are taking care of the work and not yourself. वही तो चाहिए मुझे. I mean, that's what I'm saying. Many pundits will tell you कि ऐसे answers frame करो, but मत करना. Genuinely अपनी weakness बताना, ठीक है. चलिए, let's take the next question from Omkar. Omkar is saying, sir, he is asking, if the initial impression of the interview is wrong, then how to recover by the end? पहले तो ये क्यों सोचते हो कि impression wrong है? एक important चीज है, like रोहन ने बताया, देखो, the interviewer wants to give you a chance. So even if your interview, if he starts thinking that you are not the right candidate, he is going to give you or asks you questions to figure out whether he is correct or not. So there are two ways in which an interviewer takes a decision. आप confidently आ रहे हो, हमने बोला ना, स्माइल करके जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ, फर्क नहीं पड़ता, काइंड ऑफ थिंग्स. ही वांट्स टू से ये दिखावा है या सच है. So he's going to ask you questions based on that. You need to continue doing that. Point number one. Similarly, let's say you did go with a little bit of a bad or a wrong foot in the front of the interviewer at the very beginning. That's okay. That's understandable. But he's going to keep asking questions whether are you वाकई में अच्छे नहीं हो, या the initial impression was as an aberration as such. So I'm saying don't worry about it. Nobody in their right mind, no interviewer, no HR in the right mind will reject you on the basis of first few minutes or on one single question. However, if that one question you are lying, or you're not honest, or you're unethical, like Rohan sir has correctly said, then that one question is enough to throw you out. Similarly, there were times where one question impresses you so much.
Yesterday, day before yesterday, I was in IIM Kashipur interview, Rohan. And ये इंटरव्यू 15 मिनट 20 मिनट होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद, the interviewee asked one of my panelists, सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूं क्या? मैंने बोला पूछो. And you know what his question was? Sir, last 4 months, your number of website hits to careerlauncher.com has gone up. Sir, आपने किया क्या कि increase हो गया है? Now, I am bloody impressed. Why am I impressed? This student has done this extra effort to figure out कि मेरा कुछ अच्छा हुआ है मेरे कंपनी का. I was impressed. It's a different issue that I was mostly neutral or slightly positive to this student because there's nothing wrong with him. But that one question, after the interview was over, I said, boss, इसको तो ले लेंगे. कुछ तो fight मारा है. किसी और ने fight नहीं मारा. इसी ने fight मारा है. So this is another thing which I don't know, Rohan, I might have missed it. Always, when you go to an interview, whether you go to an IIM interview, whether you go to a MBA interview, whether you go to a job interview or whichever interview, आगे जो इंटरव्यूअर है या कंपनी है या इंस्टीट्यूट है उसके बारे में जितना जान सके जान के जाना, so that if you get a chance, like the MyCow story, this is one more part of the MyCow where you will talk about that, look, I know about you, I have researched about you, I am interested in you. That is what we need to say. Yeah, so absolutely. I think Omkar, you got your answer now, right? It's very important, as I have already covered, that you need to go to the website, and guys, please be active on LinkedIn. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लिंक्डइन पे एक्टिव होना. उन कंपनी के एचआर से आप डायरेक्ट पहले ही बात कर चुके हो, उनके आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके कोई कनेक्ट्स हो सकते हैं. दे आर ग्रुप्स ऑन लिंक्डइन. सोशल मीडिया के खाली नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं है, पॉजिटिव इंपैक्ट, बट वो हम पे निर्भर करता है हम कैसे उसको लेते हैं. ठीक है. Vibhor is asking, sir, can you share your past experience of interview at IIM Calcutta? So Vibhor, for that you need to join Career Launcher Pune Center. Probably we can share our experiences because it will take some time for us to share that experiences. So please visit Career Launcher if you are a CAT student at CL. We will definitely love to answer that. Let's take one question from Naman. He's asking, sir, what are the things companies seek in us? Company हमें क्या देख रही है? Aksar, if you can take it up. I will say only one thing here, positive attitude. Among everything else, पहले तो मैं ये देखूंगा कि भैया तुम पॉजिटिव हो, एटीट्यूड ठीक है और तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो नहीं चलो. That has to come out. That's simple. Don't worry about whether your scores 10th 12th degree marks are not so great. Don't worry if you have not answered. In fact, Rohan has talked about 3 out of 10 questions किसी ने आंसर किया, फिर भी मिल गया उसको. क्यों मिला? Because those 3 questions he answered it extremely well. So it is not about the number of questions you answer, it is the way you answer it and how you answer it and with what kind of a attitude you answer it. Positive attitude. In fact, let me tell you one thing, when I select people also, I select with only one thing, यार fight मारने के लिए तैयार हो, positive attitude है, मैं तेरे को सिखा दूंगा यार, टेंशन मत लो, आ जाओ. That is the way I think most HRs will be. Absolutely. So that's it. I think there are no more questions. I think I'll share Aksar's. So if you can share your Arcs at email ID gmail.com. That's fine. I'll just give it. Anybody wants to send a mail, please feel free. It's ARKSS, ARKS, ARKSS @careerlauncher.com. But you can go to the Pune Center, FC Center, Ferguson College Center, or any other center, or to Swingard. Our own guys will come in. We will be always in touch. Thank you. Yeah. So any other question? Anybody, if you have which you want to ask and you are not able to ask in a public environment, so you can write us an email or you can connect to our Pune centers for any type of counseling. If you want career counseling, sir, आगे क्या करूँ? बहुत मुसीबत में हूँ, challenge हो रहा है. Yeah, we will love to help you in whatever way we can. So that's it from our side. Meerat sir, over to you. Thank you, Rohan sir. Thank you, Aksar, for all the insights. I am sure this had been a wonderful insight, the nuances which you have given about the interviews and how to crack it. I am sure that definitely there are going to be a lot of questions students are not asking at the moment.
but I'm sure you're going to be flooded with questions from them. So again, thank you for taking out time and sharing your insights with CAGAT students for both the first session and even for the second session. And hope to have such similar sessions in future. And you all were talking about the practice part. So for CAGAT students, you still have two more sessions on PI and GD coming up next week, which is going to be mostly on Monday and Tuesday. I'm not sure about the schedule, but mostly next week is when you have, wherein it is more about only practice, how to practice. So be a sport and try to be a part of that particular session. Galtiyan hone do, like once had said, right? This is the time where you can mistakes. So let's be a part of that session too. So to wrap up the session, so yeah, anything onto the closing in, Rohan sir and Ak sir, any final tips to students? I think they left. Okay, all right. No problem about the same. So thank you, students, for attending the session too. Hope you enjoyed it. Tomorrow again, you will be having your remaining sessions, and the schedule and details of the same would be shared with you all in your groups, also in the Telegram. Thank you. Have a good evening.